Nestled in the heart of northern India, Haryana is a dynamic state with a population exceeding 27 million. Haryana is strategically located between the Aravalis and the Yamuna River, giving it fertile plains and the title of India's food bowl. Bordering the capital city of Delhi, Haryana has less than 1.4% of India's land mass. Haryana is home to 22 districts, 154 cities and towns, and over 7,000 villages. From the bustling streets of Gurugram to the historic town of Kurukshetra, Haryana is a state where mythology, agriculture, and innovation shape a unique identity, an epicenter of India's growth and cultural evolution. Hailing from the Mongoli Jatan village of the ancient land of Kurukshetra, Nayab Singh Saini was sworn in as the Chief Minister of Haryana on 17th October 2024. Here's how the state is progressing under his leadership. Chapter 7 of the Haryana Progress Report examines the impact of the Haryana government's endeavour to ensure meritocratic jobs in the state. For generations, pursuing a stable government job in Haryana was often challenging. Whispers of parchi, slips of papers carrying influence, and kharchi, under-the-table transactions, echoed in the corridors of power. Merit often took a back seat, leaving countless deserving youth feeling helpless. However, winds of change have swept through Haryana over the past decade. A determined effort has been underway to dismantle this old order and usher in a new era where talent and hard work are the actual currency. In the past 10 years, the Haryana government has provided 1,75,000 government jobs based on pure merit. This commitment to fairness was further underscored when Chief Minister Nayab Saini, even before taking his oath, handed over 25,000 joining letters to the youth of Haryana, a testament to the government's unwavering focus on merit-based recruitment. And the promise for the future is even more significant. Chief Minister Nayab Saini has pledged to provide 2 lakh more government jobs based on merit in the next 5 years. हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात बोल रहे थे कि मेरे हिस्से में 2000 आएंगी, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। अरे जिस प्रकार का 2014 से पहले का सिस्टम था, उस सिस्टम को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। युवाओं के अंदर भय था। युवा मेरे पास आए, युवा रो रहे थे, युवा ये कह रहे थे कि आप रिजल्ट निकालिए। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, परंतु मैंने उनको एक इंश्योरेंस दिया, मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने युवाओं की उस भावना को, उस विश्वास को कायम रखा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उन परिवारों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस सरकार के अंदर तीसरे टर्म में एक बड़े मैंडेट के साथ विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि हम युवाओं के उस भावना को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कुचलने नहीं देंगे जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। While the numbers tell us a part of the tale, the real story lies in the lives impacted. This is the story of Bina Parchi, Bina Kharchi, jobs on merit, and its transformative impact on Haryana. Let's hear what the stakeholders have to say. मेरा नाम अजीत है, पाली गांव है, जिला महेंद्रगढ़, और मेरी उम्र 30 वर्ष। सर, नौकरी से पहले मैंने काफ़ी आवेदन किए थे, आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन 2015 में मैंने फॉर्म भरे थे इसके, हरियाणा पुलिस के, और 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। कोई इसमें बिचौलिया था जिसके माध्यम से आपको नौकरी मिली?
नहीं 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 सर, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, बिल्कुल फेयर भर्ती थी। हमारे सीएम साहब खट्टर थे उस टाइम, तो उन्होंने एकदम फेयर भर्ती किए थे। सबसे ज़्यादा भर्ती भी मेरे हिसाब से महेंद्रगढ़ ज़िले से ही है। तो मेरे भाई पहले एएलएम लगा था लाइनमैन, फिर उसके बाद 2024 में ही जेई जूनियर इंजीनियर, अब फरीदाबाद फ़िलहाल ड्यूटी है उनकी, तो वो 2024 में लगा। क्या उनको कोई खर्ची पड़ती? नहीं 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 सर, दोनों भाई बिल्कुल फेयर भर्ती हैं और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना पर्ची खर्ची की नौकरी हमें दी। जो इस सरकार के अंदर न खर्ची बिना पर्ची लगे हुए हैं, उन्होंने आवेदन 2015 से पहले भी किए थे पर उनको नौकरी नहीं मिल पाई। माहौल अच्छा बदला है जी, बीजेपी सरकार आने के बाद में दक्षिण हरियाणा में बहुत बच्चे लगे हैं जी। और पहले जब हुड्डा सरकार थी उसके अंदर महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई भी नौकरी नहीं लगता था, उनकी नौकरियां उधर ही रोहतक पानीपत अम्बाड़ा की तरफ रह जाती थी। पहले बिचौलिया था जी, वो अपनी अपनी सीटें पहले बुक कर लेता था। मैंने हुड्डा सरकार में एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम पास हुआ, उन्होंने मेरी सीट कहीं और भेज दी, वो मेरे को रख दिया। मैं बार बार चक्कर लगाता रहा, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, उसमें वो नाम कट गया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद जी। वो इस सरकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। नहीं जी, अब कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब तो पढ़ाई की ज़रूरत है जी। जो बच्चा टेस्ट पास करेगा वो नौकरी ले जाएगा। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और अभी नायब सिंह सैनी हैं, उनकी सरकारों में नौकरियां बहुत मिली हैं। हमारे बच्चों को भी नौकरी मिले, उनका दोनों का, मुख्यमंत्री और नायब सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम राकेश है, उम्र है मेरी 30 साल और ज़िला है महेंद्रगढ़, गांव मेरा पाली। मैंने सर मेरी स्कूलिंग अपने गांव पाली से ही की है और जो सेकेंडरी क्लास होती है वो मैंने अपनी आरपीएस स्कूल महेंद्रगढ़ से की और जो ग्रेजुएशन है वो जयपुर से की थी। सरकारी जॉब का ये है कि सर इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, आगे की लाइफस्टाइल पूरी सेट हो जाती है, आगे कोई टेंशन नहीं रहती किसी भी चीज़ की और परिवार के लिए भी अच्छा होता है। पहले प्राइवेट जॉब करता था, उसमें जॉब सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे कि कभी भी किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं प्राइवेट जॉब में। और गवर्नमेंट जॉब का ये होता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं होता। मैंने नौकरी के लिए 2 ही आवेदन किए थे। जो सेकंड जो आवेदन था हरियाणा पुलिस का था मेरा, उसमें सर मेरा इसी में सिलेक्शन हो गया था। आवेदन प्रक्रिया सर नॉर्मल थी, आसानी थी, कोई ज़्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं था इसमें। ऑनलाइन आवेदन होता था, वहाँ आवेदन किया, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो सब नॉर्मल थी। अमूमन बात होती थी कि बिना पर्ची खर्चे नौकरी नहीं मिलती थी, क्या इसमें आपकी नौकरी में कोई बिचौलिया शामिल था? नहीं सर, मेरी नौकरी में कोई बिचौलिया नहीं था। और पहले जो होता था, जो मैंने सुना था, पहले बिना खर्ची पर्ची के काम नहीं हो पाता था, पर अब जो सरकार है, ये जो रिक्रूटमेंट कर रही है, जो भर्ती कर रही है बिना खर्ची पर्ची के। पहले सुनने में आता था कि जिसका कोई राजनीतिक नेता के साथ हाथ है या फिर पैसा है, उसके ब्याह पे नौकरी मिलती। जी। क्या आपने कोई पैसा दिया इसके लिए? नहीं सर, मैंने 1 रुपया नहीं दिया किसी को भी। सर पहले का तो सर यही कह सकता हूँ सर कि पहले मंत्रियों के पीछे पीछे फिरना पड़ता था कि सर कुछ नौकरी पाने के लिए, पर अब तो सर जो पढ़ो लिखो और अपनी नौकरी को हासिल करो सर। बिना खर्ची पर्ची के ही नौकरी मिल रही है अभी, और मैं नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ इस बारे में, जो ये बता रहे हो बिल्कुल सच है। और मेहनत करो, नौकरी हासिल करो सर। मेरा नाम रामपाल है जी। कौन सा गाँव? पाली। मनीष नाम है जी लड़के का, और हरियाणा पुलिस में लगी है। नहीं जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, सरकार की मेहरबानी है। वहाँ तो बिना रिश्वत खर्चे पर्चे कुछ नहीं होता था जी। अभी सरकार ने अपनी मर्जी से जो बच्चे में काबिल थी उसके हिसाब से काम किया है। कितनी जरूरी थी आपके परिवार के लिए नौकरी? नौकरी बहुत ज़रूरी थी जी। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं जी। अब बच्चा नौकरी लगा है तो जीवन में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? बदलाव, सारे बदलाव हो जाते हैं जी। शादी हो जाएगी, बढ़िया खुशी से सारे काम हो जाते हैं। मकान बनाना चाहे मकान, ज़मीन जायदाद कुछ भी नौकरी की वजह से ही ले जाती है। गांव का बहुत ज़्यादा नज़रिया बदल गया। पहले जो राम रेव नहीं करता था वो भी पहले आगे से बढ़ने लग जाता है बच्चे नौकरी लगने के बाद में। ये किस वजह से संभव हो पा रहा है? ये नायब सिंह सैनी की वजह से संभव हो पाया जी। बदलाव ये है जी, वहाँ बिना खर्चे पर्ची कुछ नहीं चलता था, बिना रिश्वत बिना कुछ नहीं होता था। अब है जो बच्चे में काबिल होती है वो नौकरी मिलती है। क्या कहेंगे सरकार पे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। बहुत अच्छी सरकार है और बहुत बढ़िया काम कर रही है।
मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी आयु 45 ईयर्स है। वैसे तो मैंने 2 विभागों में बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान 2 विभागों में नौकरी ज्वाइन की है। इससे पहले मैंने क्लर्क के तौर पे आईजी ऑफिस रेवाड़ी में कार्यरत था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ टीजीटी इंग्लिश के पद पर हुआ है। जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो कैसी थी, टफ थी या आसान थी, किस तरह का रहा आपका अनुभव? आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल थी, स्टेप वाइज, ताकि उसमें कोई बिचौली की एंट्री ना हो उसकी। आवेदन बिल्कुल सुचारू रूप से सही ढंग से चला और कुछ बस केस वेस बीच में भर्ती को अटका देते थे, अदरवाइज सारी भर्ती फेयर एंड फाइन थी, कोई इशू नहीं हुआ। कोई बिचौलिया था या नहीं? नहीं, हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी भर्ती के दौरान किसी के ही पास बिचौलिया होने की संभावना बहुत ही कम थी। हमने हमारे बलबूते, हमारी काबिलियत के अनुसार नौकरी हासिल की है। और मैंने ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सभी बच्चों ने ही, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि मेरे को ऐसा लगता है सभी बच्चों को ही अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलेगी। पहले सिस्टम में एग्ज़ाम का तो कोई इशू ही नहीं होता था, एग्ज़ाम होते ही नहीं थे। अब सिस्टम थोड़ा दुरुस्त है। पहले एप्लीकेशन फ़ाइल कराई जाती है, फिर एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट की। जैसे सीईटी का प्रचलन चला है तो उससे एक भीड़ कम हो जाती है और जो जिस बच्चे में कैलिबर है, काबिलियत है, वो अपना आगे बढ़ सकता है। नहीं, चक्कर काटने वाला तो अभी कोई इशू नहीं है, अपनी काबिलियत पे ही है। जस्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस फील्ड के लिए तो आप अप्लाई करो और आपका टैलेंट है तो आपको नौकरी मिलेगी। उनके परिवार में तो काया पलट होना है, मतलब पूरे परिवार की ही काया पलट होना है, पीढ़ी दर पीढ़ी में फ़ायदा हो जाता है। और जिस बच्चे के पास खाने को रोटियां नहीं थी और अचानक उसको एकदम से, ये सरप्राइज़ कहते हैं ना, बोनांजा लग जाना किस चीज़ का, मतलब एकदम से उसको तो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी नीति है सरकार की कि गरीब से गरीब बच्चों को नौकरी मिल रही है। बोनंजा किस तरह से लग रहा है, वही हम समझना चाह रहे हैं। बोनंजा यही एक्सपेक्ट नहीं करते थे लोग, भाई ऐसा भी पॉसिबल है जिसके घर में मतलब पढ़ने के लिए साधन नहीं है, या जैसे भी तैसे भी करके वो +2 पास की बच्चे ने, अपनी मेहनत से पास की। और मेहनत से पास करने के बाद भी पहले की सरकारों में नौकरियां नहीं मिलती थी, खर्ची पर्ची चलती थी। अब बिना खर्ची पर्ची से उनको विश्वास तो धीरे धीरे होता है ना लोगों को। अब जब धीरे धीरे नौकरियां मिलने लगी हैं तो उनको विश्वास होना शुरू हो गया भी हाँ ऐसा हो सकता है। ये बदलाव अच्छा है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है सोसाइटी में इसका, और ये कंटिन्यूटी इसकी बनी रहनी चाहिए और जितना सुधार हो उसके और करना चाहिए। बाकी सारी प्रक्रिया दुरुस्त है और अच्छा है सबके लिए। देखिए सर, एक साधारण परिवार में इसलिए नौकरी ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसकी क्या है कि आगे 2-3 पीढ़ियाँ आगे तक बहुत अच्छा उसका वो डिस्पोज हो जाता है। बीजेपी सरकार ने फॉर्म निकाले, मैंने फॉर्म भरे, थोड़ी सी मेहनत की, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, और मैंने अपनी मेहनत के ऊपर बीजेपी सरकार ने मेरे को नौकरी दे दी। आवेदन की प्रक्रिया कैसी थी? आवेदन की प्रक्रिया सिंपल थी, साफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी से कुछ नहीं लेना देना था। सिंपल फॉर्म निकले थे, उसको ऑनलाइन भरे गए और अपनी सेल्फ स्टडी की और उसी से मैंने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम क्रैक किया। क्या कोई बिचौलिया शामिल था इसमें? नहीं सर, इसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं था, किसी की कोई खर्ची, कोई पर्ची, किसी का कोई काम नहीं था। अपने हुनर के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी करके उसके ऊपर मैंने अपनी ये जॉब हासिल की। 2014 से पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हमारे को ऐसी ऐसी जॉब मिल जाएगी, जैसे ग्राम सचिव हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। जबकि मेरा पहले सपना था कि मैं हरियाणा पुलिस में जाऊं। जब मैं बचपन में था हरियाणा पुलिस में जाने का विचार था, लेकिन उस टाइम हरियाणा पुलिस में जाना बहुत ही मुश्किल था, कोई वो ज़रूरी नहीं था। कारण क्या था, अड़चन क्या थी? अड़चन यही थी कि भाई जैसे कांग्रेस की सरकार हो उसमें थी कि भाई जो पर्ची लेके जाएगा वही उसमें सिलेक्शन होगा। अब हमारे पास कोई पर्ची वाला, खर्ची वाला कोई था नहीं कि हम जिसको लेके जाएं और उसके साथ ले जा किसी को दें और हमारा सिलेक्शन करवाएं। इसलिए हमने वो सपना छोड़ दिया। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई है, आने के बाद में हमने अपना देखा कि फर्स्ट मैंने देखा हरियाणा पुलिस का, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद में सारा सिस्टम हो गया। बीजेपी सरकार ने मेरे को 2-2 नौकरियां दी है। बीजेपी सरकार है इसमें निष्पक्ष और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी। एक गरीब परिवार है, जो बिल्कुल गरीब परिवार है, उसको भी नौकरियां मिलती हैं इसमें। आपको नौकरी मिली, आपके आसपास के लोगों को नौकरी मिली, जी। उसका अनुभव कैसा है? उनको क्या भी बातें भी होती होंगी, क्या उनको भी इसी तरह से बगैर खर्ची नौकरी मिली या कि उनको कोई बिचौलिया
देखो सर, मेरे साथ बहुत हैं, जैसे अभी ग्राम सचिव हैं, गरीब परिवार से भी हैं, तो वो बताते हैं कि हमने ये सोचा नहीं था कि हमारे को इतनी बढ़िया पोस्ट पे नौकरी मिल जाएगी, वो भी बिना खर्ची पर्ची के। हमारा 1 रुपया नहीं लगा इसमें भर्ती के में, ठीक है, कोई पैसा नहीं दिया हमने, कोई कुछ नहीं दिया। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, लगभग मिनिमम गरीब परिवार के बच्चे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपने भी मुख्यमंत्री राम सैनी जी के कार्यकाल में ज्वाइन किया। जी जी सर। देखते हैं उनका जो बगैर पर्ची खर्ची का विजन है। सर, सैनी जी का बहुत ही अच्छा विजन है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ सैनी जी का कि इतनी पहली बार मैंने देखा है कि 25,000 नौकरी एक साथ हरियाणा में सैनी जी सरकार ने दी। मेरी बिटिया कोमल रानी है, जो कि पटवारी के पद पर लगी है। ये बिना पर्ची बिना कर्ची को अपना पेपर पास का ही लगी है जी। हमारा कोई पैसा वैसा नहीं लगा। और गांव में भी 300 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा इस सरकार में बच्चे लगे हैं। और इस सरकार का इतना बेनिफिट है कि ईमानदार सरकार है, कोई भेदभाव नहीं है, जाति पाति नहीं है, सब ऐसे है। और प्रधानमंत्री की तो ऐसी सरकार है, ये कलयुग के परमात्मा है। ये पहले वाली सरकारों में नहीं, हमारे बच्चे का नंबर नहीं पड़े थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए हैं। ये तो पेपर पास करके लगे। हमारी बच्ची के ज़्यादातर नहीं लगे थे, क्योंकि ये तो पैसे से ही लगते थे सब। और इस सरकार में तो खट्टर साहब ने एक ऐसी स्कीम बनाई जो कि गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ बाप भी नहीं है, उनके नंबर लगा के तो कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। मेरा पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। इससे पहले मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड थी, क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आऊँ। मैंने BA की हुई है, इसके साथ ही मैंने कंपटीशन की तैयारी की। पहले CT प्री क्लियर हुआ, फिर मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, साथ ही मैंने पटवारी की पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो गया। पहले जैसे ऐसे मतलब पढ़ने वाले कम लगते थे, जैसे सिफारिश वाले ज़्यादा लगते थे, तो इस सरकार में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा लगे हैं। जैसे हम भी सिलेक्शन ले गए। नौकरी लगने से एक तो आदमी की रिस्पेक्ट बढ़ती है और फाइनेंशियल भी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं CM साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया और जिसके कारण हमें बहुत अच्छी पोस्ट मिली है और हमारा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे परिवार से मेरे अपने 2 बच्चे लगे। लड़का प्रवीण हरियाणा रोडवेज में, लड़के की मिसेज हरियाणा स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगी है। हमारे परिवार की आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर थी और बच्चे इस सरकार में जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है बच्चों को। ऐसे ही मेरे दूसरे भाई के बच्चे भी लगे हैं 2 हरियाणा पुलिस में और एक ग्रुप डी में लगा है। पहले की सरकारों में गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता था, पहले पैसे वालों का और राजनीतिक लिंक वालों का ही बोलबाला था। अब गरीब बच्चों के बच्चे लगे हैं, गरीबों के, जिनकी आर्थिक हालात सुधर गई है, जिससे आने वाले समय में और भी बच्चे, जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी नीति है सरकार की, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो देश में गरीब नहीं रहेगा कोई। अगस्त 2024 में मेरी जॉब हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर एज ए TGT संस्कृत लगी थी। इससे पहले मैं दिल्ली में एज ए TGT संस्कृत जॉब करती थी। BJP से पहले जितनी भी सरकारें थी वो नौकरियां कैसे मिलती थी, सिफारिश से या पैसों से। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम किसी की सिफारिश लगा सकें, या हमारा कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पैसे दे करके जॉब कर सकें। मेरा भी सपना था कि मैं खुद कुछ करके दिखाऊं, तो मैं पहले दिल्ली में लगी। उसके बाद दूसरी जॉब मेरी हरियाणा TGT संस्कृत 2024 में जो अगस्त में रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने दिल्ली में TGT संस्कृत की पोस्ट से रिज़ाइन दे करके यहाँ हरियाणा में TGT संस्कृत की पोस्ट पर ज्वाइनिंग की। स्कूल टाइम में हमें क्या सुनने को मिलता था कि ऐसे नौकरी नहीं लगती, या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या सिफारिश होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने मेरा फुल सपोर्ट किया कि पढ़ने वाले कभी ना कभी सफल हो ही जाते हैं। तो उसके बाद जब 2014 में BJP सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया कि जो जॉब होगी बिना खर्ची और बिना पर्ची के होगी।
तो जब मेरी जॉब हरियाणा सरकार में लगी, मुझे लगा कि हाँ, बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। मेरी जो जॉब है बिना किसी खर्चे के और बिना किसी पर्ची के लगी है। मुझे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा, सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे मैंने दिए थे, उसके अलावा मैंने 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ा, ना किसी भी चोलिए की ज़रूरत पड़ी। जो भी हुआ है मेरे दम पे हुआ है। जो बीजेपी सरकार ने उसने अपना वादा पूरा किया और मेरे सपने को साकार होने में बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी चेंज हुई है। आज मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ, इवन मैं अपने फैमिली के खर्चे भी खुद उठा सकती हूँ। By prioritizing merit, Haryana ensures a more efficient and capable workforce and fosters a sense of fairness and empowerment amongst its youth. It's about building a Haryana where the dreams of its young people are not determined by privilege but by their abilities. The stories heard, the aspirations realized, and the talent recognized are testaments to this system's profound impact. This is Haryana's success story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.